السلام علیکم ناظرین کوشر خبرنامہ ہیت چھس بہ ساحل امین تہندس خدمتس مز حاضر تو خبرن ہند تفصیل زاننے برو اخ نظر چن خاص خبرن پہ ہمسائے ملک طرف نوجوان گمراہ کرنچ کوشش بدستور جاری علمان تو بزرگن پہ نوجوان وت پہ انچ ذمہ داری ایل جی منوج سنہا جموں کشمیر مز این آئی اے طرف کاروائی بدستور جاری وادی ہندس شمال جنوبس مز تازہ کاروائی اہم دستاویزات ضبط بار ایسوسیشن ہندوے طرف تریمہ دہ تہ احتجاجی مظاہرے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنرس خلاف نعرہ بازی تبدیلی ہز مظاہرینو منگ Up to 5 crores. That's how much Nizami Education Group is committing to create 200 scholarships this year alone. If you're committed to earning your degree, we're committed to making it accessible. Because we believe everybody deserves a chance. And sometimes one chance is all it takes to change everything. See what scholarships you may qualify for at nizamiaeducationgroup.com. تو ناظرین پیش خبرن ہند تفصیل جموں کشمیر مز یہ این آئی اے طرف پتمہ کیا کال پہ کاروائی جاری تت آج صبح این آئی اے طرف وادی ہندس شمال جنوبس مز تازہ کاروائی عمل مز ان آمت یتھ دوران ممنوعہ تنظیم جماعت اسلامی کن کیہن کارکنن تو دویمن لوکن ہندن گرن پہ چھاپ تراؤن آئی ون آج صبح این آئی اے طرف مقامی پولیس تو سی آر پی ایف کے مدد ست ضلع سرینگرس مز کیہن جائن پہ کاروائی عمل مز ان آمت یل زن ضلع بڈگام کن کیہن علاقن مز تہ کاروائی عمل مز انس علاوہ ضلع بنڈپور ورمل کپور گاندربل شوپیاں پلووم ضلع اننت ناگ تو ضلع کلگامس مز تہ کیہن جائن پہ این آئی اے طرف کاروائی عمل مز ان آئی یتھ دوران کیا اہم دستاویزات ضبط کرنے آمت یپر ضلع رامبن تو ڈوڈاس مز تہ این آئی اے طرف آج کاروائی عمل مز ان آمت یتھ دوران کی اہم دستاویزات ضبط کرنک دعو کرنے آمت ایل جی منوج سنہن آج ضلع کلگام کے کاچلو کنڈ علاقہ دورہ کورمت یتھ دوران تمن ہمراہ انتظامیہ دویم افسر تہ موجود دورس دوران ایل جی منوج سنہن اکس تقریب دوران ونمت زِ ہمسائے ملک طرف نوجوان گمراہ کرنچ کوشش کرنے یوان تو یہ علماہن تو بزرگن ہز ذمہ داری زِ تم ہاون یمن نوجوانن صحیح وات منوج سنہن نوجوانن ہز بہبودی تو جموں کشمیر ہز تعمیر ترقی حوالہ کت کران وونمت زِ جموں کشمیر انتظامیہ طرف نوجوانن ہز بہبودی حوالہ کیا قدم تلنا آمت یت زن نوجوانن ہند مستقبل تابناک بناونہ یل زن تمو تعمیر ترقی حوالہ کت کران وون زِ جموں کشمیر انتظامیہ طرف تعمیر ترقی یقینی بناونچ وعدہ بند تو امہ حوالہ تہ سنجیدہ قدم تلنا آمت جو ہمارے نوجوانوں کی بدلاہٹ کی چھمتا ان کے ٹیلنٹ کو ان کے توانائی کو غلط سیکھ دے رہا ہے اور بدجانی میں جکڑنے کی کوشش کر رہا ہے یہ نشچت روپ سے افسوس کی بات ہے بہت سارے مولوی صاحبان اور خطیب جن کی پوری دنیا تعریف اور توصیف کرتی ہے ان سے بھی میں آگرہ کرنا چاہتا ہوں پہلے بھی ان سے میں نے بات چیت کی ہے کہ بچوں کو صحیح تعلیم دی جائے اور صحیح تعلیم کے ذریعے ہر ایک نوجوان تنویر خان بن سکے اس کی کوشش کرنے کی ضرورت ہے اور یہی صحیح سمے ہے کچھ مٹھی بھر لوگ ہیں جو پڑوسی ملک کے بہکاوے میں آ کر کے یہاں کی ترقی اور امن کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں جموں کشمیر کے سبھی نوجوان آج پلیٹ فارم چاہتے ہیں جس کے ذریعے سیکھنے کی پرکریا ہو یا جیون میں کچھ بڑا کرنے کی حسرت ہو اسے پورا کیا جا سکے اور میں آپ کو بھروسہ دینا چاہتا ہوں کہ یہاں کا پرشاسن بھی پوری طرح اسی کوشش میں لگا ہے ہم بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ایسی نیتیاں بنیں جس سے جموں کشمیر کے نوجوان بچوں کو بچیوں کو ان کی یوا چیتنا کو مضبوط کیا جا سکے اور ان کے اندر کی جو اچھا ہے ترقی کی اسے پورا. یہاں کی دھرتی کو یدی دیکھیں
तो ये संतों की, सूफी फकीरों की धरती है। यहाँ किसी भी तरह की हिंसा या गुनाह खुदा के दिखाए रास्ते के खिलाफ है। सूफी फकीर सिमनानी साहब का नाम आप सबने सुना है। उनकी दो पत्नियां आपकी नजर करना चाहूंगा। चेकुस बसत बाद के एज इंतजारे बाउमीद और रसद उम्मीदवारे। सिमनानी साहब कहते थे कि एक लंबे इंतजार के बाद, मित्रों, कुरान में लिखा है, वजाहिदू फिल्लाहि हक जिहाद ही, यानी अपनी आध्यात्मिक यात्रा में जितने प्रयास करने वो जरूर करिए। हम रोज संघर्ष कर रहे हैं। बाहर की यात्रा के साथ साथ अंदर की यात्रा का भी संघर्ष चलता। इसलिए मेरी आप सबसे गुजारिश है, जीवन में तरक्की के लिए प्रयास करने की जरूरत है। शांति, समृद्धि, आवाम की बेहतरी, लोगों के जीवन में खुशहाली आवे, इसके लिए सबको मिलजुल करके प्रयास करने की आवश्यकता है। PDP तरफ आज श्रीनगर मज तकरीबी साज कर आमुत यथ पार्टी सदर महबूबा मुफ्ती तो यूथ विंग हिंदो जिम्मेदारों तो कारकुनों शिरकत कर। अत मौके पे पार्टी मामलन हवाले कथन दल दिन आव तत वर्करन पे जोर दिन आमुत ज तिम गन चुक सान काम करें युत जन ज्यादा खुद ज्यादा नौजवान पार्टी में शामिल सपदन। ये जन अत मौके पे महबूबा मुफ्ती वोन जम्मू कश्मीर मज दायमी अमन कायम करने बापत जरूरी ज तथ फार्मुलाज पे अमल करने यस जन मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईदन मरकजस ब्रोह कन थोमुत। नहीं, आज हमने यूथ के कुछ ख़ुसूसी कुछ लड़कों को बुलाया था और जो जम्मू कश्मीर के जो इस वक्त हालात हैं उनके बारे में उनके साथ बात हुई कि किस तरह से जो जम्मू कश्मीर इस वक्त इस मुसीबत में फंसा हुआ है, क्योंकि यूथ जो है वही हमारा मुस्तकबिल है और उन्हीं को आगे चल के ये सब जो है इसको फेस करना है। तो उसके बारे में बात हुई, उनके साथ डिस्कस हुआ कि जो जब तक मसले कश्मीर हल नहीं होता है, जब तक इसका कोई हल ना निकाला जाए, तब तक जम्मू कश्मीर के हालात जो हैं तरक्की नहीं हो सकती है, सुधार नहीं हो सकता है। और इसके बारे में मुफ्ती साहब ने अपना एक विज़न दिया था सेल्फ रूल के हवाले से, जिसमें बॉर्डर्स को हर तरफ से खोलना, जो पुराने हमारे बॉर्डर, जो सिल्क रूट हमारा होता था, जहाँ से हमारा कारोबार होता था, जहाँ से जो जम्मू कश्मीर एक कारोबार का हब था, इसी तरह पाकिस्तान के साथ जो रास्ते मिलते हैं, दूसरे कश्मीर के साथ जो रास्ते मिलते हैं, जम्मू सियालकोट है, नौशेरा जंगड़ है, श्रीनगर अस्तूर है, श्रीनगर कारगिल अस्करदू है, इसी तरह श्रीनगर जिंगजैंग है। इसी तरह जो हमारे आबी वसाइल हैं उन पे हमारा कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि दिल्ली हमें बार बार ये कहते हैं कि हमने इतना पैसा जम्मू कश्मीर में खर्च किया, मगर वो ये बात भूल जाते हैं कि जो हमारे वाटर रिसोर्सेज हैं, जो बिजली जो पैदा होती है, पूरे मुल्क में सबसे ज़्यादा हिस्सा अगर कोई बिजली का जाता है तो वो जम्मू कश्मीर से जाता है। तो वो करोड़ों खरबों रुपए हम मुल्क को देते हैं बिजली के, पानी के हवाले से, तो वो हमें उसका हमें कंपनसेशन मिलना चाहिए। इसी तरह ये जो जंग है आपस में हमारे मुल्क और पाकिस्तान की जम्मू कश्मीर को लेके, ये बंद होनी चाहिए, एक बातचीत का सिलसिला होना चाहिए। जम्मू कश्मीर एक अमन का पुल बनना चाहिए दोनों मुल्कों के दरमियान। जैसे मुजफ्फराबाद रोड खुला था, रावलाकोट खुला था, कारोबार अब बंद पड़ा है पिछले 1-2 साल से, वो चालू होना चाहिए। इसी तरह से दोनों तरफ के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मिलने के मौके दिए जाने चाहिए, कारोबार होना चाहिए। तो ये सारी बातें जो जम्मू कश्मीर के हवाले से मुफ्ती साहब का एक अपना नज़रिया, एक विज़न था, उसको हमने एक्सप्लेन किया। और मेरा ये मानना है, मुझे यकीन है कि जम्मू कश्मीर के मसले के हल के हवाले से इससे बड़ा कोई प्रैक्टिकल कोई तरीका नहीं है जिसमें दोनों मुल्कों की सालमियत को ख़तरा नहीं है। पाकिस्तान की अपनी सालमियत बरकरार रहती है, हिंदुस्तान की अपनी सालमियत बरकरार रहती है। बॉर्डर्स को तब्दील नहीं किया जाता है, बल्कि बॉर्डर्स को ख़त्म करके दोनों तरफ के जो लोगों को, जम्मू कश्मीर के लोगों को इकट्ठे ग्रो होने का मौका दिया। मैम, कोई कैलकुलेशन है आपके पास कि युवा कितने बंद हैं, पॉलिटिकल लीडर्स कितने बंद हैं? कोई डेटा आपने बनाया है, स्ट्रक्चर किया हो अगर आपने? अब हो गया ना काफी। मैम, एक रिएक्शन इस पे दे दीजिए बस। तो ये आपने देखा जो रिएक्शन है जो सामने आया, जैसे ही युवा को लेकर सवाल हुआ, क्योंकि मैडम आए दिन कहते रहते हैं कि पॉलिटिकल लीडर बंद हैं, हमारे पॉलिटिकल लीडर्स बंद हैं, युवा बंद है। तो इसमें एक शेर मेरे ख्याल में आता है जो काफ़ी पहले लिखा गया था, मैंने खुद लिखा था कि फ़िक्र में हम भी हैं तुम भी हो, किसको किसकी है फ़िक्र क्या खबर। क्या खबर महबूबा जी को अपने युवाओं की फ़िक्र है या फिर जो एक युवा बंद हैं उनकी फ़िक्र है।
अब देखना ये है कि युवाओं की क्या कोई लिस्ट बनाई है मैडम ने, फहरिस्त बनाई हुई है कि कितने युवा बंद हैं, या फिर वो बस एक ही युवा के चक्कर में जम्मू कश्मीर के हज़ारों युवाओं की बात बार बार करती रहती है। कैमरामैन फिरदौस नजार के साथ अमजद खान। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी तरफ आज डाक बंगल खनबलस अनंतनागस मज तकरीब हुंद सांस करना आमुत यथ मज जुनेद अजम मत्तू तो यूथ विंग हिंदो जिम्मेदारों तो कारकुनों शिरकत कर। अत मौके पे ये पार्टी मामलन हवाले कथन दल दिनाव तत वर्करन पे जोर दिन आमुत जो पार्टी मंशूर घर घर वातनावनस हवाले गसन कदम तुलने इन युद्ध जन पार्टी जमीनी सुथरस पे मजीद मजबूत बनाने यी। शांगस से हमारे भाई, तो मैंने बड़ी दिलचस्पी से सबकी बातें सुनी। म्यूनिसिपल काउंसिल जो यूथ की सारी एग्जीक्यूटिव बॉडी थी वो थी, और बहुत सारे जो नौजवान कारकुन हैं मुख्तलिफ़ तंजीमों से आए, उनने शमूलियत की। आपने देखा अभी इससे पहले भी मैं अनंतनाग यहाँ पे आया था और मैं नौजवानों से उस दिन मिला खनबल में। मैं आपको पूरे वसूख से ये बताना चाहता हूँ कि लोग क्या कहें, क्या झूठ कहें, क्या फ़रेब की सियासत करें, अपनी पार्टी उभर रही है, हर एक अतराफ़ व अकनाफ में उभर रही है, इदारा साजी हो रही है, एक इदारा बन रहा है, डिस्ट्रिक्ट बॉडीज़ बन रही हैं, यूथ बॉडी परकोलेट बूथ लेवल तक हो रही है। और हम मेहनत से दो चीज़ों पे, अपनी मेहनत से और सच बोलते बोलते इस तंजीम को अरूज तक ले जाएंगे, ताकि हम लोगों की रिप्रेजेंटेशन कर सकें, उनके लिए वो कर सकें, उनको उस तरीके। आपको भी पता है साहिब साहब, ये तो ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग पॉलिसी थी, पुलिस वेरिफिकेशन एक एग्जिस्टिंग पॉलिसी थी। हमारी ब्यूरोक्रेसी की एक बहुत बुरी आदत है, कभी वो जो एग्जिस्टिंग मेजर होता है उसको ऐसे दोहराते हैं कि लगता है कि कुछ नई आफत आ गई है। और इन द स्पिरिट ऑफ बार एसोसिएशन हंदवार तरफ आज त्रेम दह एहतजाजी मुजाहिर करना आमुत, यथ दौरान एहतजाजस में शामिल वकील एडिशनल डिप्टी कमिश्नर सज तब्दीली हज मंग करान। एहतजाज में शामिल वकीलों तरफ वन आमुत योदवे ADC सिंदिस दफ्तरस मज कई काम अंजरावन बापत आम लूख तो वकील ताहम एडिशनल डिप्टी कमिश्नर सद तरफ यम काम अंजरावनस हवाले कह कदम तुलने यमकिन तिम एहतजाज करनस पे मजबूर सपद। यपर आज जिला तरक्याती कमिश्नर कपवार एडिशनल डिप्टी कमिश्नर सदिस दफ्तर मौका कोरमुत, यथ दौरान तिमो वकीलन सत कत कर। DC साहब हमारे यहाँ पे आए, उन्होंने एश्योरेंस हमको दी कि हम जितने भी आपके मसाइल हैं उनको हम रिड्रेस करेंगे विद इन ए शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ टाइम। हम वेट कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन का कि कहाँ तक वो हमारी जितनी भी जो भी ग्रीवेंस है वो कहाँ तक वहाँ हल कर पाएंगे। यहाँ पे फ़िलहाल हमारी जो हंगर स्ट्राइक है वो कंटिन्यू रहेगी जब तक नहीं यहाँ पे हम हंदवारा ADC सब रजिस्ट्रार का तबादला हो जाएगा, तब तक हमारी हंगर स्ट्राइक जारी रहेगी। DC साहब चूँकि आज हॉलीडे थी, इसलिए एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट से हमारे पास यहाँ ज़्यादा कोई आया नहीं। DC साहब ने हमें इश्योर किया कि विद इन शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ टाइम वी विल रिड्रेस द ग्रीवेंस ऑफ योर लॉयर्स। तो यहाँ पे जो एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है और जिसमें वकला साहिबान को भी हमने सुना, मैं आया जब से मैंने सुना कि रात से ये यहाँ पे हंगर स्ट्राइक पे हैं अपने प्रेसिडेंट साहब, तो हम आए इनसे मिलने के लिए ताकि मैंने कहा असल वजूहात जो है वो जाने और उसको एड्रेस करने की कोशिश करें, क्योंकि इनके गिले शिकवे जो हैं वो हमने अभी सुने। बाज़ाब्ता एसोसिएशन के लोग मिले हमारे साथ, हमने पॉइंट वाइज नोट किया सारा डिटेल, उस पर एक बाज़ाब्ता रिपोर्ट गवर्नमेंट को चली जाएगी। इवन कल मैं फिर आऊँगा इंशाल्लाह। दूसरी साइड भी हमने देखनी है क्योंकि अफसर को भी सुनना है, इनको मैंने सुना क्योंकि ये स्ट्राइक पे थे, इनकी प्रायोरिटी थी ताकि मैं इनके पास आ जाऊँ, इनकी बात सुनूँ। तो कल फिर हम दोबारा आएंगे और हम ऑफिशियल पार्ट जो इनने कुछ यहाँ पॉइंट्स बताए हैं उनको भी रिवेरीफाई करने की ज़रूरत है कि जैसे इन्होंने कहा कुछ अपील्स पेंडिंग रह रही हैं, रजिस्ट्रेशन में कुछ जल्दी नहीं हो रही है, सब चीज़ें जो है देखने के काबिल हैं। प्लस कुछ जो इन्होंने कहा कि वहाँ पे ज़्यादती हुई ऑफिस में कुछ वकला साहिबान के दरमियान और ADC साहब के दरमियान, उस पर भी दोनों पार्टीज़ को हम साथ बिठाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो मसले आमने सामने बैठ के हल होते हैं वो दूरियों से दूरी बढ़ती है, दूर रहने से दूरियां बढ़ती हैं। अगर किसी भी तरफ से कोई कोताही हुई है, गलती हुई है, वो बैठ के इंसानी तरीके से उसको हल किया जा सकता है। और नेगोशिएशन ही एक वाहिद माध्यम है, एक वाहिद ज़रिया है जिसके ज़रिए से बड़ी सी बड़ी परेशानी और बड़ी सी बड़ी तकलीफ को दूर किया जा सकता है। जम्मू कश्मीर इंतजामिया तरफ ये हाल नव फिल्म पॉलिसी मंजर आम अन्न आई, तत वादी हिंदो हिदायतकारों अदाकारों तो अत सत वाबस्त दोमियो लूकों तरफ वन आमुत योदवे जम्मू कश्मीर इंतजामिया संजीद तेल पज मुकामी हिदायतकारन तो अदाकारन सत सलाह मशवर कर।
मेरी यही गुजारिश है और मैं अगेन यही कहना चाहूँगा कि जो यहाँ के इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स हैं उनके लिए मुझे इसमें शायद कुछ लग नहीं रहा है, लेकिन कुछ सवालात हैं। अगर कोई वे हो वो सवाल पूछने का और उनके जवाब अगर मिल जाए तो दैट इज़ डेफिनेटली ए वेलकम स्टेप। क्योंकि यहाँ की जो टीवी इंडस्ट्री है, जो दूरदर्शन के जो कलाकार हैं, डायरेक्टर्स, एक्टर्स, राइटर्स, म्यूजिशियंस, एवरीबडी दे आर ऑल सिटिंग आइडल फ्रॉम लास्ट ऑलमोस्ट 10 years। तो कहीं ना कहीं जो हज़ारों फैमिलीज़ उसके साथ जुड़ी हुई हैं, कहीं ना कहीं उनके लिए भी सोचना चाहिए। और आई एम वेरी होपफुल, क्योंकि मैंने जो पढ़ा है तो उसमें मुझे काफ़ी होप्स नज़र आ रही हैं एंड आई एम श्योर कि वो होगा, लेकिन वो एलेबोरेट नहीं हुआ है उसमें। और अगर उस पर थोड़ी सी रोशनी डाली जाए और यहाँ के जो एक्टर्स हैं, जो फिल्म मेकर्स हैं, जो यहाँ के फिल्म मेकर्स हैं, उनके लिए अगर सोचा जाए तो यही हमारी गुजारिश होगी हायर अथॉरिटी से। हम इसे समझते हैं ये एक अच्छा सेटअप है, इस पॉलिसी को लाया गया और उसमें काफ़ी अच्छे प्रोविज़न भी रखे गए हैं। लेकिन ओवरऑल हम जब इस पर नज़र डालते हैं कि हमारा जो एक बेनिफिट होगा हमारे आर्टिस्टों का, हमारे डायरेक्टर्स का, हमारे फिल्म मेकर्स का, उनको बेनिफिट मिलेगा थ्रू रीजनल सिनेमा। और हमारी यही ख्वाहिश है कि हमारी इल्तिजा है इंतज़ामिया से कि ये ठीक है, आप बाहर के फिल्म मेकर्स आएँ, बहुत अच्छी बात है, यहाँ के छोटे मोटे आर्टिस्ट काम करेंगे। लेकिन एक प्रॉब्लम भी है कि जितने भी यहाँ लाइन प्रोड्यूसर्स आज तक काम करते आए हैं, जिन्होंने मुख्तलिफ फिल्म यूनिट्स के लिए काम किया है, इससे ऐसा भी लगता है कि उनकी रोज़ी रोटी छीनी जाती है। और अच्छी बात है कि इसमें एक प्रोविज़न रखा गया है कि वो एक फिल्म इंस्टीट्यूट यहाँ बनाना चाहते हैं, वो तो बहुत हम वेलकम करते हैं उसको। लेकिन हमारी यही इल्तिजा है कि इस पर गौर किया जाए, क्योंकि रीजनल सिनेमा ही एक वाहिद प्लेटफॉर्म है यहाँ पे हमारे आर्टिस्टों के लिए। हमारे सब जितने भी लोग हैं जो फिल्म इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं, उनके लिए बस एक ही स्ट्रॉन्ग प्लेटफार्म जो है जहां उन्हें फ़ायदा मिलेगा, दैट इज़ रीजनल सिनेमा। हाँ, इसमें कुछ प्रोविज़न रखा गया है बट वो एम्बिग्यूटी में है। मतलब इसमें जो कहा गया है कि फिल्म काउंसिल के बारे में और सब्सिडीज़ के बारे में, अगर सब्सिडी इनको देनी है दैट शुड बी एक्सक्लूसिवली फॉर द फिल्म मेकर्स ऑफ J&K, नॉट फॉर आउटसाइडर्स। इनविटेशन मिला हमें गवर्नर हाउस से ऑन 5th कि ऐसे फिल्म पॉलिसी हो रही है। उससे पहले हमसे कोई मतलब नहीं हुआ था, लेकिन मैं अभी भी कोई वक्त नहीं गया है। मैं यही चाहता हूँ कि जो हमारी यहाँ की गवर्नमेंट है, अगर वो सही माने में, जैसे इसमें कुछ लिखा हुआ कई पॉइंट्स हैं कि रीजनल इंडस्ट्री को डेवलप करना है एंड लोकल टैलेंट को बूस्ट करना है, अगर ये सब करना है, सीरियसली करना है, तो दे शुड मीट द पीपल हु आर डूइंग इट राइट नाउ। मुझे ले लीजिए, मैंने फिल्म बनाई है विदाउट एनी सपोर्ट फ्रॉम एनीवन। आई हैव मेड द फिल्म फ्रॉम माय पॉकेट। चाहे वो कैसे बनाई, किस तरह से बनाई, दैट आई नो हाउ आई फेस्ड इट। लेकिन क्या मैं चाहता हूँ कि ऐसे ही 10 लोग सामने आए और फिल्में बनाएं, और ताकि और फिर गवर्नमेंट से एक बूस्ट की जो एक्सपेक्टेशंस हैं हमें, वो पूरी हो। दैट्स व्हाट आई कैन से अबाउट दिस। डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर डॉक्टर मुश्ताक अहमदन आज जिला अस्पताल शुपियन दौर कोर्मुत, यथ दौरान तिमन हमरा महकम सेहत दोयम अफसर ते मौजूद स। दौरस दौरान ये तिमो अस्पताल के कामकारुक जायजे हो, तब तिमो अस्पताल इंतजामिया पे जोर दितमुत ज फरज गसन चुक सान अंजाम दिन इन युत जन और इन वालन मरीजन मुश्किल वेतरन पेन। यल जन जराई इब्लाग सत कत करान डॉक्टर मुश्ताकन वोन ज यदवै लूक इंतजामिया अथवास करन तेल मुमकिन ज कोरोना वायरस पे रोट लागनस में सपदे आसानी। सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखें। अगर हमें देखिए, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। हमें इसमें कोई पैसा नहीं लगाना, कोई 100-200 का खर्चा भी नहीं है। इतनी आसानी है, बहुत कम कीमत में हम ये प्रिवेंशन ले सकते हैं। और इसका जो सारे दुनिया भर में देखा गया, प्रिवेंटिव मेजर्स से बहुत हम ये कोरोना खत्म हो सकता है। प्रिवेंटिव मेजर्स एंड वैक्सीनेशन गवर्नमेंट को जो करना है, हमने पिछले टाइम भी हरा दिया। सेकंड वेव में वो हर कोई ऑन टोज रहा, एक सफाई वाले से लेकर हमारे LG साहब तक हर कोई ऑन टोज रहा और हमने हरा दिया। मेरी लोगों से यही गुजारिश है, हम थर्ड वेव को आने से पहले ही हराना चाहते हैं। उसमें हमें लोगों का ताउन चाहिए। प्रिवेंशन, प्रिवेंशन एंड प्रिवेंशन, वैक्सीनेशन एंड SOP।
कंगन गांधरबल के लोगों तरफ शिकायत बावान वन आमुद यदवे इलाकस मज जच्चा बच्चा हस्पताल कायम करने हवाले इमारत तमीर करना आई ताहम छन आज ताम इमारत इस्तेमाल मज अन्न हवाले कह कदम तुलना आमुद यमकिन कंगन तो अत अंद पंद इलाकन मज रोजन वालन लूकन सठा मुश्किल वेतरन पेवान मुकामी लोगों तरफ इंतजामिया मांग करना आमुद इमारत इस्तेमाल मज अन्न हवाले गसन संजीद कदम तुलने yin युद्ध जन लूकन मजीद मुश्किल वेतरन पेन। गुज़श्ता 10 या 11 साल बल्कि 12 साल से भी ज़्यादा पहले ये इसका मतलब एक शुरुआत हुई थी इसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए की उम्मीद ये थी कि पूरे ज़िले मतलब गांधरबल ही न सही बल्कि आसपास के जो दूसरे अजला है उसके जो मज़ाफ़ाती इलाके जो हैं उनको भी इससे फ़ायदा मिलेगा। ये जच्चा बच्चा हस्पताल मदर एंड चाइल्ड हस्पताल है, इसको बड़े एक अच्छे मतलब पर्पज़ के लिए यहाँ पर कंस्ट्रक्ट किया गया था। आज देख रहे हैं कि ऑन ग्राउंड हम जब इसका इंटीरियर देखेंगे तकरीबन 90% के आसपास इसका काम मुकम्मल हो चुका है। एक्सटीरियरली जब हम इसको ऑब्जर्व करते हैं, जब हम फॉलो करते हैं मुकामी एक बाशिंदे की हैसियत से, तो ये देखा गया कि इसमें बॉयलर हाउस अभी तामीर नहीं हुआ है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। रेजिडेंशियल क्वार्टर्स है जो इसके हवाले से, या आउटर ड्रेनेज सिस्टम जो है। तो हम जब इसके हुकाम से गुजारिश करते हैं जो कंसर्न जो है उसको बताने की कोशिश की, हमको ये कहा जा रहा है कि शायद बजट का इशू हो या कुछ हो, तो हमारी हुकाम से यही गुजारिश है कि इसके लिए सब डिवीजन कंगन के जच्चा बच्चा अस्पताल मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल जो पिछले 2 सालों से इस राह में है कि इस हॉस्पिटल की इनाग्रेशन हो। 95% इसका काम मुकम्मल है, लेकिन क्या वजूहात है कि जच्चा बच्चा अस्पताल कंगन सब डिवीजन के लिए खोल नहीं जा रहे हैं। अब यहाँ के लोगों को यही गुजारिश है डिप्टी कमिश्नर गांधरबल और डायरेक्टर हेल्थ कश्मीर से कि इस हॉस्पिटल को जल्द अज जल्द खोला दिया जाए, ताकि कंगन का अवाम जो गरीब अवाम है यहाँ दूर दूर के इलाकों के सोनमर्ग से, नारानाग से और एडजॉइनिंग जो गरीब अवाम है यहाँ के लोगों को राहत मिली। कितना कामयाब रहेगा एडमिनिस्ट्रेशन, ये तो आने वाले वक्त से ही पता चलेगा। कैमरामैन मजीद के साथ सलीमानी, कंगन, गांधर। नाजरीन कोशिश खबरनाम जारी, इतने तिजारती वक्फ।